Good afternoon. Yes, Vache. How are you, Falguni? Okay, perfect. Okay, done. Okay. So, I hope you're all doing well. I know there's a lot of pressure, there's a lot of panic, there's a lot of anxiety, and I mean the feeling is such that we cannot express it before somebody, but there is a roller coaster of emotions in us, and we are actually in a condition that we don't know what's going to happen and will we be able to manage it or not. So I definitely understand the problem, the anxiety that each of you must be facing right now. And just to make sure that you don't have the same amount of anxiety anymore further, I've kept this session, which is going to be a very, very, very important session. I'll just take your 15-20 minutes of your time, and we are going to discuss something which is really relevant for your examination and with the special focus on advanced accounts right now. So, सबसे पहली बात, what I want you to understand, बच्चे, everybody, each of you present out है, लाइक मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहती हूँ कि जंग जो है वो मेंटली जीती जाती है। फिजिकली तो आप जाएंगे लड़ाई करेंगे इज अ सेकेंडरी थिंग, बट जो आपके जहन में होता है, आपके दिमाग में, जंग कहीं ना कहीं उससे ही जीती जाती है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ पीपल से विराट कोहली, एंड आई थिंक most of us appreciate him a lot for the performance that he comes out with. So despite of all the pressure, जब स्टेडियम के अंदर ऑडियंस खड़ी है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और बहुत बिल्कुल एंड मोमेंट चल रहा है, but he has something in his mind, like, no, I have to do it, which we can see from his eyes, from his face. We are able to feel कि कहीं ना कहीं कितना ही प्रेशर हर जगह से आ रहा हो, चाहे वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, लाखों करोड़ों लोगों का प्रेशर हो, लेकिन ना वो बातों को सुनना है, ना उन बातों को सोचना है। सिर्फ एक ही चीज के ऊपर निगाह होना है, दिमाग होना है, फोकस होना है, वो है हमारा गोल। क्या हमें ऐसा करना है? ऑफ कोर्स ये लगता है क्या ऐसा हो गया तो, बॉल इस तरीके की आई तो, वैसी आई तो, इफ आई वांट टू डू इट, इफ आई लूज इट, विकेट हो गया तो, ऑफ कोर्स इट कम्स even in his way. It comes in the brain of everybody who is just facing some kind of a challenge. But my point is, everybody does ना, everybody does. हम लोग भी इसी तरीके से जब एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो एग्जाम से पहले हमारे दिमाग में ये बात आ ही रही है, फिर वही टॉपिक आ गया तो जो मैंने छोड़ा है, वही क्वेश्चन आ गया तो जो मेरी कमजोरी है, what will happen there? So my point is कि you cannot control that. जो आना होगा वही आएगा. You cannot control that. But what we can exactly control, completely control, is the usage of time that we have in our hand. Number one. Second, very, very important, if the question paper by chance comes out with tough questions, a few tough questions, then they will be tough for everybody. All the children across India and abroad who are writing this particular paper, they are close to your age. They also got more or less same time for preparation. They also have that huge syllabus ka pressure. They also have same amount of anxiety. So you are no different or you are no less. All those who are writing paper, you may call them your competitors. They are also more or less in the same zone. So, like, what to do now? That's the best thing. कि यार सभी लोग तो सेम ही पोजीशन पे हैं, हो सकता है कोई कोई थोड़ा बहुत पीछे हो, कोई थोड़ा बहुत आगे हो, बट अगर पेपर के अंदर टिग आउट करने की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लें, टिग आउट करना मतलब खोजना, एक एक क्वेश्चन को फटाफट 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 स्कैन करना, अभी मैं उस पर आती हूँ, और ये चाटना कि जो मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं उन टॉपिक के क्वेश्चंस तो मैं एटलीस्ट परफेक्ट कर दूं, जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मैं परफेक्ट कर दूं। अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसका एटलीस्ट कुछ पार्ट तो मैं सही कर पाता हूँ। अगर कोई पूरा ही करा कराया क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वो तो मैं मिस ना करूँ। तो जो हाथ में उसको सही करने की कोशिश करे ना, इंस्टेड ऑफ वरीइंग और टेकिंग टेंशन अबाउट जो अभी बुरा हुआ नहीं, हो सकता है अच्छा हो जाए ना, हो सकता है पेपर बहुत ईजी आ जाए, हो सकता है तुम पेपर टाइम पे कंप्लीट कर लो। तुम अच्छा सोचो ना, क्योंकि तुम जो सोचते हो, ये बात सच्चाई है, आप जैसा सोचते हैं, आपका जो माइंड है वो उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है और आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में काम करने लगती है। अगर आप अपने आप को रेगुलरली ये फीड करेंगे, आई डू इट, हो जाएगा,
प्रैक्टिकली भी बात सोचें यार, इंस्टीट्यूट कभी भी, ऑनेस्ट बात कर रही हूँ मैं, आपके मन रखने थे नहीं, इंस्टीट्यूट कभी भी एक तरफा पेपर नहीं देता कि एक्सट्रीम टफ दे दे, कभी भी ऐसा नहीं होता। पेपर हमेशा मिक्स होता है। देयर विल बी सम एवरेज क्वेश्चंस लाइक फॉर 60 65 70 मार्क्स। टफ बनाना है तो 20% वो कुछ टफ क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो यार 70 75 मार्क्स का तो एवरेज आना तय है। और 20 मार्क्स का अगर टफ आया तो वो आएगा। तो भी यार 70 75 कभी अगर एवरेज आता है, मैं उसमें से छाट छाट के करूँ तो कुछ नहीं, बेयर मिनिमम इतनी पढ़ाई तो करी है, 55 60 65 तो ला ही सकते हैं। 55 60 65 तो ला ही सकते हैं। फिर बच्चे क्यों नहीं लेके आ पाते? वो इसलिए नहीं लेके आ पाते क्योंकि उनका जहन, उनका फोकस वो एवरेज पे नहीं होता। वो पेपर में जाते हैं और वो टफ पार्ट को देखते से उनको हार्ट अटैक आ जाता है कि और अब तो टफ पेपर आ गया, अब क्या होगा? अरे यार, तुम्हें उसको करना क्यों है? इंस्टीट्यूट ने दिया ही इसलिए है ताकि तुम चिंतित हो। और तुम उसको देख के अगर डिमोटिवेट हो गए तो हार गए तुम। हार गए हम इस जंग के अंदर। तो हमें वो नहीं देखना ना। हमें उस पॉइंट पर क्या देखना है कि पेपर में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो में से बनती हैं, और हमें क्विक 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 वो चीजों को तो परफेक्ट कम से कम करना जरूरी है। तो मुझे आपको यही बात समझानी है सबसे पहले इम्पोर्टेंटली। प्लीज जब तक आप एक ग्रुप लिख रहे हैं, 2 ग्रुप लिख रहे हैं, वॉट एवर, एग्जाम्स पूरे ना हो जाए, 1 मिनट भी अपने आप से वादा कर लो, 1 मिनट भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचोगे। ऐसा नहीं हुआ तो, पेपर टफ आ गया तो, पेपर पूरा नहीं हुआ तो, मैं लेट पहुंचा एग्जाम में तो, चेक करना टफ चेक किया तो, अरे तो इसका तुम करोगे क्या यार? यू डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। सो जस्ट थिंक अबाउट द गुड थिंग्स। मैंने 7 8 महीने पढ़ा है। मैंने टॉपिक को 2 बार रिवाइज किया है। मैंने मॉक टेस्ट पेपर भी दिए हैं। मैंने फॉर्मुलेस को रिवाइज भी किए हैं। मैंने एएस के नंबर याद भी किए हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चंस पूरे भी किए। ये बात फीड करो अपने अंदर। ये बात फीड करो। जैसे ही जहन में, दिमाग में कोई नेगेटिव बात आए कि ऐसा हो गया तो इसको आप लड़ो अभी के अभी माइंड से। और बोलो नहीं, मैंने तो ऐसा किया हुआ है, मेरी तो इतनी प्रिपरेशन है। कितने सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे टॉपिक्स ही नहीं किए, मैंने तो मेजरली पूरे कर लिए। अपने आप में अच्छी फीडिंग करो। अपने लिए अच्छा नहीं बोलोगे तो कैसे काम चले? और जब दिमाग में वो पॉजिटिविटी होगी तो पेपर डेफिनेटली एक अलग ही तरीके से हम कर रहे होते हैं। एक अलग तरीके से कर रहे होते हैं, सिली मिस्टेक से बचते हैं और सही चीजें हम कर पाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई दूसरा एक्सटर्नली नहीं कर सकता। ये आपको अपने लिए खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बस ये जो बात है इसको प्लीज अपने ध्यान में रख लीजिएगा। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज फीड नेगेटिव थॉट्स इन योरसेल्फ। प्लीज डोंट डू इट। अब मेरे पास, मैं आपको 2 3 कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। इसको देखें, आप दिमाग में डालें। ये एक न्यूज़पेपर है। समाचार पत्र वितरक का बेटा पहले प्रयास में बना सीए। दूसरा मैंने यहाँ आपके लिए रखा हुआ है स्क्रीनशॉट, इफ यू हैव अ लुक एट इट। Raj started driving auto rickshaw because he had studied only up to class 4. However, his son Rahul made him proud by passing the exam of C. Coming from a background doesn't matter. क्या आपकी परिस्थितियां रही हैं अभी, इन लोगों की शायद इससे और वर्स रही होगी, बट माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए। माइंड को कि मुझे करना है, कर गुजरना है, और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ देखें, this particular person, Padmakar, he lost the ability to walk at the age of 9. He lost the ability to walk at the age of 9. But he cleared. When I lost the ability, doctors told my parents he won't be able to live for his 18th birthday. But he wanted to do something and he became a chartered accountant, and presently he is working in one of the big fours like any other employees. So ऊपर वाले का शुक्र है यार, हम तो बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी जो यहाँ पे मौजूद है वो फाइनेंशियली इतनी क्राइसिस से गुजर रहा है, एंड देयर इज नोबडी जो हेल्थ वाइज ऐसी क्राइसिस से गुजर रहा है। इफ दीज पीपल कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। ऑफ कोर्स यू कैन। जस्ट ओनली थिंग व्हाट इज नीडेड इज, इनके भी दिमाग में और लाइफ में दसों परेशानियां थी, but they did not, I think they did not feed their mind with negative thoughts. So just think about, okay, I'll do it. Okay, I'll do it. Now, how to enhance this positivity in you? There are a lot of things. जैसे मैंने आपको अभी बोला, पहली बात तो think about your journey again and again, कि मैंने क्लासेस अटेंड करी हैं, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने रिविजन किया है। देन थिंक अबाउट द मॉक टेस्ट दैट वी आर गिवन, कि मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक अंदाजा है कितनी देर में क्या करना होता है। इसके बाद तीसरी बात, घर के ऊपर लिख के क्वेश्चंस को वापस रिपीट किया है, तो दैट मीन सेल्फ प्रैक्टिस की है। तो क्लास की है, सेल्फ प्रैक्टिस की है, मॉक टेस्ट पेपर्स दिए हैं। ये 3 बातें तो हुई थी। चौथी बात, जहां जहन में ये आए कि अगर मैं भूल गया तो अपने आप को याद दिलाओ कि यार बचपन से पहला एग्जाम नहीं दे रहे, अनेकों एग्जाम दे चुके हैं। तो एग्जाम में पढ़ के जाते थे तो पूरा नहीं, मेजरली तो याद रह जाता था। अगर 100% भी नहीं होता था तो ठीक है, काफी हद तक तो याद रह जाएगा।
फिर अपने आप को याद दिलाओ, अगर टफ पेपर आता है तो वो सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं होगा, वो सबके लिए टफ होगा। तो उसके अंदर जो भी होता है, माइंड मेंटली स्ट्रांग, तो बच्चा एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट तो करेगा। और ऐसे पेपर में हमेशा चेकिंग जेनरस होती है। अगर पेपर टफ आता है तो सबके लिए टफ है, फिर बोल रही हूँ टफ है तो सबके लिए टफ है। उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो लोग पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट करते हैं और जो स्टेप्स को सही करने की कोशिश करते हैं, तो चेकिंग जेनरस होती है, वो आराम से क्लियर कर जाते हैं, इवन एग्जाम्शंस भी आ जाती है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात आती है, जो मुझे पर्सनली लगती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि प्लीज गिव एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ योर टाइम ऑफ द डे फॉर प्रेयर्स। जब आप दिन में सुबह सबसे पहले उठें तो शुरुआत करिए अपने दिन की प्रेयर से। 10 मिनट के लिए आप प्रार्थना करें। आपका दिल में जितना टेंशन है, रोना आ रहा है, आप रो लें। और किसी इंसान के सामने ना रोएं, भगवान के सामने रोएं। आप रो लें और आप अपने लिए दुआ मांगें कि मेरे को ये चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें आप, कि मुझे सब याद रह जाए, पहली बात। उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते 3-4 घंटे हो जाए, दोपहर का टाइम है, आप फिर 10 मिनट 15 मिनट के लिए बैठे, पढ़ाई को बिल्कुल साइडलाइन कर दें, अपने लिए वापस दुआ मांगें और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे वो एनर्जी दें, मुझे वो रिटेंशन एबिलिटी दें कि मुझे सब याद रह जाए। फिर शाम का टाइम जब 5-6 बज रहा है अप्रोक्सीमेटली, आप ये प्रयास फिर से करिए। उसके बाद वापस नियरली 7-8 बजे ये आप फिर से करिए। दिन में 3 से 4 बार मिनिमम। और बेड में सोने से पहले लेटे, और लेटे लेटे वाली प्रार्थना कर ली, रोना आया रो लिया और अपने मैसेज सेंड कर दिया गॉड को कि मेरे को ये चाहिए, प्लीज यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग वर्क्स बिकॉज ऑफ यू। आप चाहो कि रुक जाए सब तो रुक जाएगा, आप चाहो कि चलता रहे तो चलता रहेगा। आप प्लीज मुझ में एनर्जी दे दीजिए और रिटेंशन एबिलिटी के मैं सब कर दूँ। आप दिन के 3 से 4 से 5 बार बेड में उठे, सोने वाले टाइम और बीच बीच में 3-4 घंटे के गैप से 5-5 मिनट भी प्रेयर कर लेंगे, तो आपको अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फील होगा। आपको ऐसा एहसास होगा जैसे यू हैव गॉट, हमें क्या बोलूं मैं, जैसे किसी के साथ कोई वो नहीं होता, गार्ड होता है। तो जब कोई गार्ड होता है, बॉडी गार्ड्स, तो जैसे सलमान खान चौड़े पे चलता है उसके साथ वो क्या नाम है उसका, शेरा, साथ में घूमता है, या कोई दूसरा है कोई, तो उनके साथ उनके गार्ड होते हैं, सो दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल। ऐसे ही आपको गार्डेड फील होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ भगवान मौजूद है और आप अपनी प्रॉब्लम उन्हें बता रहे हैं और वो आपको उसका लिए आपके साथ खड़े। सो यू फील देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी दैट कम्स इन अस। तो ये चीज को आप करेंगे तो I'm quite sure you are going to feel much better. Now, coming to the utilization of your time, ताकि आप एडवांस अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करें, तो मैंने आपके लिए एक सिस्टमैटिक शेड्यूल बना दिया है। आप 4 दिन का टाइम दीजिए रिविजन के लिए। 31st, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 4 डेज। आज आपको जो भी दूसरे सब्जेक्ट का पैकअप करना है, यू डू दैट। अब ये 4 दिन में कब क्या पढ़ें, सो मैंने आपके दिन वैसे डिवाइड कर दिए हैं। इट इज हेयर ऑन द स्क्रीन, मैं 1 मिनट समझा रही हूँ, फिर मैं आपको ये फाइल शेयर भी करा दूंगी इफ यू वांट, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 31st, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, व्हाट आई हैव डन इज, हर दिन मैंने 2 बड़े टॉपिक्स आपके लिए रख दिए हैं। बड़े टॉपिक्स 2-2 अप्रॉक्स, और टाइम सामने अलॉट कर दिया है कि आपको मैक्सिमम इतनी देर में उन टॉपिक्स को कवर करना है। दूसरी बात आती है आपके पास, फिर मैंने वापस आपके पास कुछ एएस रख दिए हैं, जो साइज वाइज थोड़े थोड़े बड़े हैं, प्रैक्टिकल नेचर के एएस है। उसके बाद मैंने कुछ जो थ्योरी वाले एएस हैं, उनको हर दिन के हिसाब से थोड़े ब्रेक कर दिए हैं, ताकि थ्योरी और प्रैक्टिकल का मिक्स रहे। देन ये पूरे टॉपिक्स का टोटल 10 घंटे में खत्म होगा। ये पूरों का 11.5 घंटा, ये पूरों का 10.5 घंटा, और ये पूरों का 9.5 घंटा। इसको करने के अलावा आपको कल जो एमसीक्यू का पीडीएफ शायद आपको मिल गया होगा, नहीं मिला हो तो यू कैन टेल, तो मैं आपको शेयर करा दूंगी। आप 3 घंटा लगाएं और उसमें क्वेश्चन को, तो मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रिकॉर्ड भी करे हुए हैं, आप वो यूट्यूब से वीडियो भी देख सकते हैं साथ में। क्वेश्चंस करें कम से कम आप 5-7 क्वेश्चंस 3 घंटे में। उसके बाद अगले दिन, क्योंकि यहाँ ज्यादा है, अब आधा घंटा 1-2 क्वेश्चंस कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप वापस से 5-6 क्वेश्चंस कम से कम करिए। ऐसे जब आप 3 दिन कॉन्स्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, होगा ऐसा कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रीड करने की एबिलिटी स्पीड अप होगी। दूसरा, क्वेश्चंस पढ़ के कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो मैम हमें कितनी देर देना चाहिए, इफ देर इज अ बिग एमसीक्यू विच हैज गॉट लाइक अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, तो आपको एक ऐसे को करने के लिए 15 मिनट्स अलॉट करना चाहिए, ये अपने पास आप लिख लीजिए। हर दिन जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ देयर इज अ बिग एमसीक्यू विद 4 to 5 क्वेश्चंस जिसका वेटेज 8 से 10 मार्क्स होगा, आपको उसमें अप्रोक्स 15 मिनट्स का टाइम अलॉट करना है। तो अगर मैंने आपको ये 3 घंटे का टाइम दिया,
तो आपके पास कितने निकल के आते हैं? 4 8 12, 12 एमसीक्यूज होने चाहिए नियरली यहाँ पे आपके। ऐसे ही मैंने ये आधा घंटा दिया है तो 2 एमसीक्यूज इस दिन कर लें। यहाँ मैंने आपको 2.5 घंटा दिया है तो अकॉर्डिंगली जो भी निकलता है शायद 10 एमसीक्यू, वो आप यहाँ कर लें। जब आप 3 दिन कॉन्स्टेंट एमसीक्यूज कर रहे होंगे तो पेपर में जाके एमसीक्यू का अटैक नहीं आएगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं जल्दी कैसे करूँ, क्योंकि यू आर इन दैट हैबिट। सो डू नॉट मिस डूइंग दिस डेली बेसिस पे 3 दिन कॉन्स्टेंट। और यहाँ चौथे दिन 9.5 घंटे का शेड्यूल है, तो मेक श्योर करे हर एक बच्चा, भले ही सारे टॉपिक रिवाइज हुए हों या ना रिवाइज हुए हों, कि आप यहाँ पे बैठ के एक मॉक टेस्ट पेपर 3 घंटे में जरूर लिखेंगे। 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मत दीजिएगा अपने आप को। 15 मिनट रीड करके 2 घंटा 45 मिनट के अंदर आपको पेपर लिखना है। मतलब यू हैव टू गिव योरसेल्फ 15 मिनट लेस देन द एक्चुअल एग्जाम। सब लोग ये लिखें, इंश्योर करें ये लिखना। डू नॉट मिस डूइंग दिस। भले ही एक आध दो टॉपिक रिवाइज होने से रह जाए, चल जाएगा, बट पेपर लिखना एक दिन पहले बहुत जरूरी है, ताकि आपका हाथ सेट रहे, माइंड सेट रहे कि मेरे को कितनी देर में क्या करना है। मुझे यहाँ पे सब लोग क्लैरिटी दीजिए, इसमें कोई किसी को डाउट कि मैंने क्या बोला है, कैसे आपको ब्रेकअप करना है? प्लीज अपना सीक्वेंस मत रखना। इफ यू आर वेरी क्लियर कि मेरा सीक्वेंस में मैं इतने दिन में प्रॉपर रिवाइज करूं, देन डू इट। अदरवाइज दिस इज द आइडियल शेड्यूल दैट एवरीबडी शुड फॉलो, एवरीबडी मस्ट फॉलो। ओके, इसके बाद अब आती है बात पेपर की। तो इसको आप कब से प्रैक्टिस करेंगे? मॉक टेस्ट पेपर लिखते टाइम ही आप इस चीज को अप्लाई करेंगे। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट पेपर में you guys get 3 hours for writing and we get 15 minutes for reading the paper. Now I'm telling you a very very important strategy of handling the paper properly. आपके पास जब 15 minutes का टाइम हो, do not look at the MCQs. वैसे भी they generally do not allow you to open that MCQ की बुकलेट जो अलग से मिलती है भाई। So do not open that and you open your descriptive part. Now in descriptive, listen very carefully. मेरे बच्चे, आप पूरे क्वेश्चंस को बैठ के ना बहुत बारीकी से मत पढ़िए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हम पूरे एक एक लाइन पढ़े। डोंट डू इट। देन व्हाट शुड वी डू मैम? यू नीड टू स्कैन आउट। व्हाट यू हैव टू डू? फटाफट 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 यू हैव टू स्कैन आउट एंड जस्ट चेक मोटे मोटे तौर पे कि टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट्स कौन से हैं, एंड देन टेल योरसेल्फ वेदर यू आर कंफर्टेबल इन द टॉपिक। Go for the next question, scan out the question quickly, very quick. See what is the requirement, what are the adjustments, and whether you know it or not. Move to next, move to next, move to next. And while you are doing this, question paper में अगर तुम्हें लगता है यार these are the topics and adjustments I'm quite comfortable with, आप वहाँ dot लगा दो। Just a dot, बस invigilator सर पे ना खड़ा हो, ये ध्यान रखना। So put a dot there. Then you go through the next question, you feel like this is a completely new question and I don't know it. Skip. Next question, you feel, yes, I know. Again, put a dot. Next, you know, again, put a dot. So you have to figure out, you have to identify quickly, you have to scan it out in 15 minutes, which are the questions जिनके adjustments तुम्हें आते हैं and you're reasonably comfortable. You are reasonably comfortable. There is a possibility कि ये 15 मिनट में काम ना हो. That's fine. आप इसमें 20 मिनट तक भी जा सकते हो। तो 15 की जगह अगर आप राइटिंग टाइम में से 5 मिनट ले लो तो it will work. No problem. 20 मिनट में अपना ये डिसाइड कर लो कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, ताकि आपको उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब वो करते करते ही आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, ये तो मेरा बेस्ट है, ये तो मेरे को सबसे अच्छे से आता है। जो बेस्ट है वो ही फर्स्ट करोगे, भूलना मत इस बात को। जो बेस्ट है सबसे पहले हमको वो करना होता है। सो आपने वहां से अपने क्वेश्चन स्कैन आउट कर लिए, मेरे को कौन से करना है और बेस्ट कौन सा है वो पकड़ लिया। अब और से मेरी बात सुनो, आपको फर्स्ट 1 घंटे 2 बजे पेपर लिखना स्टार्ट होता है। 2:05 पे सपोजिंग आपने स्टार्ट किया, 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लगता है। 3:05 पे आपको 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेना है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए इतनी देर में। एसेंशियली एसेंशियली ये आप मॉक टेस्ट के टाइम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगला 1 घंटा, सो 3:05 से 4:05 तक आपको अगले 2 क्वेश्चन बता दें। इम्पोर्टेंटली यहाँ तक हो जाना। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का टाइम, 15 मान देंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15-20 भी हो सकता है फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, 5 क्वेश्चन हो जाए, इसका मतलब टोटल आपका टाइम 2 घंटा 15 से लेके 2 घंटा 20 मिनट, इतने में डिस्क्रिप्टिव को करना है खत्म। और पूरा सीधे सीधे 40 से 45 मिनट आपको करने रहेंगे सेव। अब जो 40 से 45 मिनट आपके पास बच रहा है उसमें आप एमसीक्यू टेकअप करेंगे।
एमसीक्यू आपके दो कैटेगरी के आते हैं। एक आते हैं कट्टे कट्टे बड़े सारे एमसीक्यू, बड़े बड़े, उसके अंदर पूरा 1-1.5 पन्ने का होता है। और कुछ आते हैं छोटे, जो कि होते हैं लाइक 4-5 लाइन 6 लाइन के। बेटा उनको पहले पकड़ लेना, उनको पहले पकड़ लेना, उनको पहले कर लो आप। और उसके बाद वो जो बड़ा वाला है फिर उसको बैठ के आप, उसको बैठ के आप ही में करो। मार्क्स वाइज में कहूँ तो 1 मार्क के लिए आपके पास नियरली 1.5 मिनट अवेलेबल होता है। तो अगर आपका कोई एमसीक्यू 4 नंबर का है तो आप उसको 6 मिनट तक दीजिए। कोई एमसीक्यू आपका 10 मार्क्स का है तो आप उसको 15 मिनट तक दीजिए। आपका कोई एमसीक्यू 6 नंबर का है तो 1.5 मिनट के हिसाब से 9 मिनट तक दीजिए। दिस शुड बी योर हिसाब। इसको बहुत मेंटली क्लियर रखो, जैसे ही टाइम खत्म हो मूव टू नेक्स्ट। बच्चों की दिक्कत क्या होती है ना, वो एमसीक्यू अगर कई बार शुरू में टेकअप कर लेते हैं और वो बड़े निकले और नए, तो डिस्क्रिप्टिव में पड़े जाता है। और कभी कभी बच्चों की कहानी होती है कि वो एमसीक्यू तक जा ही नहीं पाते, वो एंड में हर कुछ टिक लगा देते हैं। तो आपको टाइमिंग लेके बहुत क्लियर रहना है कि यार मैम ने कहा शुरू का 1 घंटा 2 क्वेश्चन, मतलब आधे घंटे का एक, आधे घंटे में एक क्वेश्चन, आधे घंटे में एक क्वेश्चन। आधा घंटा हो जाए उस क्वेश्चन पे मत रुके रहो, उसको वहीं छोड़ दो, जगह छोड़ के अगले पे मूव कर जाओ। उसके बाद फिर अगला किया 1 घंटे में दो, अगले 1 घंटे में दो, फिर 15 मिनट में एक, 2.25 घंटे में डन। 45 मिनट बचे एमसीक्यू के लिए, पहले छोटे एमसीक्यू करेंगे, फिर बड़े एमसीक्यू के ऊपर आएंगे। दिस हैज टू बी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आर यू क्लियर विद दिस ऑल ऑफ यू? You need to promise me one thing. You will not spend more than 30 minutes on one full descriptive question. I'm repeating again. You will not spend more than 30 minutes on one full descriptive question. सो एक फुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। तो 14 × 1.5 करते हो तो 14 × 1.5 होता है आपका 21। तो भी मैं आपको 30 मिनट दे रही हूँ। 30 मिनट से इसका आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे नहीं टाइम लगाना। ये आपको इंश्योर करना है, और ये बात पे आपकी ग्रिप इसी से आएगी। एक दिन पहले आपको जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, इन स्ट्रैटेजी के अनुसार यहाँ उसको अप्लाई करके जाना है, ताकि पेपर में एक्सपेरिमेंट ना हो। पेपर में हम एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हैं, पेपर में एक्सपेरिमेंट ना हो, हम पेपर में एक्सपीरियंस के साथ जा रहे हो विथ राइट स्ट्रैटेजी के, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? और पेपर में मेंटली इस बात को प्रिपेयर होके जाओ कि पेपर में पूरा टफ नहीं आता कभी भी। 70-75% हमेशा एवरेज पेपर आता है। 20% 25% बहुत से बहुत टफ आ सकता है। तो जो अपने हाथ में है 70-75, उसको हम सॉलिड करते हैं, उसको सॉलिड करें, सिली मिस्टेक ना करें, बिल्कुल सिली मिस्टेक ना करें। बस अगर आप ये अप्रोच रखते हैं तो सब अच्छा ही होगा। और अकाउंट्स पे जिम्मेदारी बच्चे ज्यादा होती है, ये मैं आपको शुरू से बताती आई हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हैं, ये सच्चाई है। सो हम अकाउंट्स को बेस्ट करके जाएं ताकि एग्रीगेट के अंदर ये जिम्मेदारी को निभाए। इज दैट फाइन? इज दैट क्लियर? किसी को कोई और बात पूछनी हो, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन टेल मी। Anything anybody feels, you can tell me. So no negative feeling. You have to just be positive. Number one. Number two, make sure you're praying for 3 to 4 to 5 times a day. And number three, follow this particular schedule. And number four, you have to follow the strategy in your paper. क्या एमटीपी करंट अटेम्प्ट की अभी करी है या नहीं करी? बाय चांस अगर नहीं करी हो, नहीं, एमटीपी कैन बी एनी, यू कैन पिक अप लाइक आई नीड टू से मॉक टेस्ट पेपर, यू कैन पिक अप प्रीवियस अभी जो आया था क्वेश्चन पेपर वो उठा लो, उसके पहले का क्वेश्चन पेपर उठा लो। यू जस्ट नीड टू डू वन पेपर इन 3 आवर्स। अच्छा, आपको एलडीआर क्वेश्चंस चाहिए अगर, तो मैं एलडीआर क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं। इन केस यू वांट तो मैं आपको आज शाम तक शेयर करा दूंगी लिस्ट, आज शाम तक शेयर करा दूंगी। तो ये रिवीजन जब आप करें तो आप एलडीआर क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंटली कर लेना। कह रहे हैं ओके, ठीक ठीक ठीक, दिस इज अ रिलेवेंट पॉइंट टू टॉक अबाउट। आपको हर दिन एक काम करना है एंड दैट इज 6 आवर्स मिनिमम सोना है। तो सॉरी, एक मिनट देना मुझे, डिस्कनेक्ट करूं। आपको ये जरूर करना है काम कि आपको मिनिमम 6 आवर्स सोना है। अगर आप उससे कम सोएंगे तो आगे वाले पेपर्स के अंदर आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, तो उससे कम सोएं। दूसरा, आपकी बात आती है कि मैम पेपर के कितनी देर पहले तक पढ़ना है। देखिए, आप लोगों को निकलना होता है, आपका रादर रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है 1:45 से, तो आपको 1:30 सेंटर पहुंच जाना चाहिए। अब इधर से आप रिवर्स पकड़ लीजिए कि आपका सेंटर और आपका घर कितना दूर है,
अगर 1 घंटे का डिस्टेंस है तो 12:30 निकल जाओ, आधे घंटे का डिस्टेंस है तो 1 बजे निकल जाओ, वटेवर। अब आपको इससे कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना चाहिए। तो आई थिंक मॉर्निंग 10 बजे तक अटमोस्ट यू कैन स्टडी। उसके बाद एक शब्द ना पढ़ो, नॉट इवन अ वर्ड, नॉट इवन अ वर्ड। मैक्सिमम मॉर्निंग 10 बजे तक यू स्टडी एंड कट एंड डोंट स्टडी एनी मोर। अब आ जाए जो आएगा वहीं पे देखा जाएगा, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत, जितना पढ़ो जितनी जरूरत। तो मैम इस टाइम करें क्या? इस टाइम अपने माइंड को करूँ पहले शांत। एक बात तो इम्पोर्टेंटली वापस कहूंगी भाई, अपने लिए 10 से 15 मिनट प्रेयर करके जाना। दूसरी बात, अब अपनी मस्ती करो थोड़ी, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, लिसन टू सम गुड सॉन्ग, स्पेशली नॉट अ रोमांटिक सॉन्ग एट ऑल प्लीज। पता पड़े यादें आ जाए किसी, मस्ती वाले सॉन्ग। सो मस्ती वाले सॉन्ग, थोड़ा ढिंचैक ढिंचैक वाले, ताकि उनको सुनो, थोड़ी भाई बाय, थोड़ा माइंड चेंज हो। और ऐसे ही सुनते सुनते चले, ऐसे ही सुनते सुनते चल जाओ। अगर टैक्सी से जा रहे हो, मम्मी पापा के साथ जा रहे हो, गाने सुनते सुनते जाओ, प्लीज आप छोड़ दो। और जब, हाँ मैं फाइल चेक करा देती हूँ, जब आप एग्जाम हॉल में अंदर भी एंटर करें, तो मैं हमेशा ये बात करती थी कि जब रूम में एंटर करूँ तो बैठ क्या, कह रहे पेपर में दिमाग में गाने चलेंगे, चल ही नहीं सकते, हम इतने टेंशन में होते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि गाने चले दिमाग में। ये तो सिर्फ कोशिश है कि हम अपने टेंशन को थोड़ा कम कर लें, नहीं तो हो ही नहीं सकता कि गाने चले। एग्जाम हॉल में जाने के बाद शांति से बैठो, बैठ के क्वेश्चन पेपर खोलने से पहले भी मैं यही करती थी, आंख बंद करी, ये नहीं हम उधर उधर सबको देखना है, भाई तू बताएगा कौन बताएगा। आंख बंद करी, आंख बंद करके शांति से ब्रीद इन ब्रीद आउट 4-6 बार। डियर गॉड, यू हैव सीन मी वर्क हार्ड, you have seen me devise. I just need your support. Please help me do those questions which I know perfectly. And please help me at least attempt those questions reasonably for step marking. जो नए भी हो, please stay with me and please help me clear my exam. इसको आपको से बोलना नहीं है, इसको आपको भरोसा करके बोलना है, with complete trust in God. 2 मिनट अपन ने अपना बोला करा, और फिर पेपर सामने आ गया, और फिर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसके अनुसार शुरू। ठीक है, ये बात भी क्लियर। तो आपको दो चीजें, कैन बी टेक अप एमसीक्यू फर्स्ट। मेरा बच्चा आई स्पोक इन हिंदी राइट नाउ, नॉट इन जर्मन और फ्रेंच, प्लीज डोंट आस्क सच क्वेश्चंस। आई सेड नो एमसीक्यू फर्स्ट। एंड व्हाई, उसका भी मैंने रीजन बताया, बिकॉज इन केस यू कम अक्रॉस न्यू एमसीक्यूज और लंबा टाइम आपने उस पर स्पेंड कर दिया तो डिस्क्रिप्टिव निपट जाता है, और जनरली डिस्क्रिप्टिव काफी स्कोरिंग होता है, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, रेस्ट इज काफी स्कोरिंग। आपको जो बोला जाए आप वो कराने की प्लीज आदत डालें। जो आपके सामने बोल रहा है वो व्यक्ति इतने हजारों बच्चों के एक्सपीरियंस के बाद और सालों के एक्सपीरियंस के बाद बोल रहा है, आपके लिए सुनने में शायद 25-30 मिनट लगे होंगे, ये बोलना क्रिस्प के लिए बहुत मेहनत और दिमाग लगा होता है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर आपकी चॉइस है, वो फिर आप जो चाहें आपका पेपर। यहाँ तक हो गया है, मैं आपको दोनों चीजें आज शाम तक शेयर कराती हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ। कल से अपना रिविजन स्टार्ट कर लें। कहीं भी आपको डल या लो फील होता है, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन स्टे कनेक्टेड विद मी। माय नंबर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन। बाय चांस समबडी फील्स लाइक नो नहीं हो रहा, बहुत घबराहट है, बहुत कोई चिंता है, भले ही मैं आपको पर्सनली जानती हूँ ना जानती हूँ, बट अगर आपको कोई एक्सेसिव पैनिक हो रही हो, यू कैन टॉक टू मी, आई मेक श्योर दैट आई एम देयर। इज दैट क्लियर? ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, only positive thoughts. I know you can do it and you will surely do it. Try that. Take care. God bless each of you. May God bless you all and may you all clear your exam super soon. That result wale din we are celebrating. Bye mera bacha. God bless you all. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।